Greetings students, welcome to Edulux Rankupclasses, and as you can see here on the thumbnail that we would discuss plant kingdom. Good evening Sushmita, good evening Aditya, good evening Prakhar, good evening everyone who have joined us. Now plant kingdom is a massive chapter, it cannot be finished in whatever time we are allotted today. और प्लांट किंगडम हमने पहले भी किया हुआ है, सो दोज हु हैव सब्सक्राइब, दोज हु हैव बॉट आवर कोर्स, प्लीज दे कैन गो टू द रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स और वहाँ से प्लांट किंगडम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. In this class, what we would do, is that I have selected a few questions, and with those questions, we would try to understand a few basic concepts related to this chapter, Plant Kingdom. और आपको पता है कि नीट का भी बिगुल बज गया है, 1 अगस्त को नीट होने वाला है. So now is the time that where you establish a deep connect with your NCERT. हालांकि ये मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, लेकिन अभी का वो समय है जब स्टूडेंट्स भटक जाते हैं, थोड़ा इधर उधर चले जाते हैं. That now we have grasped everything that's there in NCERT. Please don't do that. Okay, so we'll discuss a few questions, understand a few concepts, and we'll end our class by discussing a question, and I hope that whatever we discuss, you people understand those concepts. और एक और चीज, so watching this video, watching this class live should not be a passive exercise. Okay, it should not be a passive exercise. And what is meant by being passive? Okay, being passive is that you're just sitting with hands here and just watching. Okay, I want you to be active listeners, so please take your NCERT out and ओपन द चैप्टर ऑफ प्लांट किंगडम. ओके, और उसमें जहां कहीं से भी सवाल लिए गए हैं, आई विल आस्क यू टू गो देयर एंड रिवाइज दैट थिंग अगेन, बिकॉज passive listening would not solve any purpose. Okay, you have to be an active learner, an active worker. Okay, and with this छोटा सा ज्ञान की बात, we start discussing our chapter plant kingdom. Okay. Now this is the first question. Chemotaxonomy is based on very simple question, as you know that chemotaxonomy ये शुरुआत में प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में सेकंड पेज पे दिया हुआ है. ठीक है, कीमोटैक्सोनॉमी कई टाइप के टैक्सोनॉमी के साथ दिया हुआ है, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेकिन कीमोटैक्सोनॉमी जो है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द plant पे based है chemotaxonomy, and your NCERT also says that to remove confusion, taxonomists also use the analysis of chemicals, okay, present in plants. So that is chemotaxonomy. तो जो लोग भी हैं प्लीज अपनी NCERT के सेकंड पेज पे देखिएगा, प्लांट किंगडम वाले सेकंड पेज पे, वहाँ chemotaxonomy के बारे में क्या दिया हुआ है. सो एवरी क्वेश्चन दैट वी डिस्कस इज एन होमवर्क फॉर यू, और फिर उसके बाद ऊपर नीचे का पूरा पेज देखना. पढ़ाई करते वक्त आपको अर्जुन की तरह नहीं होना होता है. ठीक है, हालांकि एम और मोटिव के लिए तो आप अर्जुन की तरह हो जाओ कि हाँ भाई मुझे सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान है, मुझे सिर्फ नीट पर ध्यान है. लेकिन पढ़ते वक्त सिर्फ अर्जुन होना ठीक नहीं है कि कीमोटैक्सोनॉमी बताया तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी छोड़ दिया, नहीं पढ़ा. ठीक है, पढ़ते वक्त इधर उधर की चीजों को भी देखना होता है. ठीक है, तो ऊपर नीचे की भी चीजों को देखना. ओके, नाउ गुड इवनिंग साम्राज्ञी. So this is chemical constituents of the plant. Now let us move on to next question. Next question में आप देखिएगा बहुत ही सिंपल सी चीज है, that Polysyphonia, Porphyra, Gracilaria and Gelidium are members of. ओके, तो ये आपको देखना है कि आपका जो रेड एल्गे का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, रेड एल्गे में लास्ट पॉइंट यही दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स ही दिए हुए हैं. सो राइट आंसर वुड बी रेड एल्गी. ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रख लेना है. ठीक है, फिर उसके बाद और आप पेज नंबर पे जाते जाओ. पेज नंबर कौन से पेज पे जाओगे? गुड सौम्या, पेज नंबर रेड एल्गी वाला लास्ट लाइन. ओके, सो दैट इज रेड एल्गी. फिर उसके बाद नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज they reproduce asexually by
non-motile spores and sexually by non-motile gametes. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous. oogamous क्या होता है पहले हम लोग ये समझ लें. आपकी एनसीईआरटी ने प्लांट किंगडम में नहीं लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में 3 चीज की बात की गई है. सबसे पहला एक है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, and oogamous. Now what is isogamy, anisogamy and oogamy? इसमें भी बात की गई है प्लांट किंगडम में. एल्गी वाला जो सेक्शन है उसमें देखिएगा आप. आइसोगैमस क्या होता है? आइसोगैमस होता है कि जहां पे सेम जो गैमीट्स हैं वो सिमिलर साइज के हों, वो आइसोगैमी हो गया. जहां पे गैमीट्स डिफरेंट साइज के हों वो अनाइसोगैमी. एंड व्हाट इज oogammy? Oogamy is a larger non-motile female gamete and a smaller motile male gamete. ठीक है, so that is oogamous. तो आप यहां पे देखो non-motile spores and non-motile gametes. What is it? What does it mean? It means that it lacks flagella. आपकी एनसीईआरटी प्लांट किंगडम में जो टेबल दिया हुआ है उसमें देखो कि फ्लैजेला यूजुअली एब्सेंट है, नहीं होते हैं फ्लैजेला. सो दैट इज बाय नॉन मोटाइल एंड oogamous हो रहे हैं. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ oogamous किसमें होता है? सिर्फ और सिर्फ oogamous जो है वो रेड एल्गी में होता है. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ oogamous किसमें है? रेड एल्गी में है. तो द राइट आंसर वुड बी रेड एल्गा. ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर, रेड एल्गा. आई होप ये क्लियर होगा नाउ. तो ये भी देखिएगा आपके रेड एल्गा वाले सेक्शन में टेबल के जस्ट ऊपर वाली कुछ लाइंस में दिया हुआ है. ठीक है, सो प्लीज जस्ट मार्क दैट एज वेल. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following has chlorophyll A, C, carotenoids and xanthophylls? इसमें आप देखो chlorophyll A, B, A, C and A, D. AB in chlorophyce, AC in phaeophyce and AD in rhodophyce. ठीक है, ये भी आपके टेबल में दिया हुआ है. तो व्हाट वुड यू से? ए सी, द राइट आंसर वुड बी फियोफाइसी. ओके, सो द राइट आंसर वुड बी फियोफाइसी इस सवाल में. ओके, आई होप इतना आप लोग को क्लियर होगा और एनसीईआरटी को देखते रहना है साथ में. नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. In which of the following food is stored as Floridian starch which is very similar to amylopectin and glycogen? उसी टेबल के ऊपर 3 लाइन ऊपर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो यही लाइन दी हुई है किसके अंडर? अंडर रेड एल्गा. किसके अंदर दिया हुआ है? रेड एल्गा के अंदर दिया हुआ है. तो प्लीज ये ध्यान में रखिएगा. फिर प्रोटोनीमा स्टेज डेवलप्स फ्रॉम. प्रोटोनीमा के लिए थोड़ा सा हमें जो लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स है वो हम लोग समझ लेते हैं. पर इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए. प्रोटोनीमा स्टेज डेवलप फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. ये जो सवाल आपके बोर्ड पे है, आपके स्क्रीन पे है. टेल मी एवरीवन व्हाट इज द आंसर. What is the answer, everyone? Okay. Sir, प्रोटोनीमा स्टेज आप देखो क्या होता है कि ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, कैप्सूल में जो स्पोर मदर सेल्स हैं, ठीक है, स्पोर मदर सेल्स डू व्हाट? स्पोर मदर सेल्स अंडरगो मेयोसिस. ठीक है, और जो ये मेयोसिस हुआ तो ये डिप्लॉयड है 2n, जिससे कि फिर हैप्लॉयड क्या बने? स्पोर्स.
ठीक है, और ये जो स्पोर है, ये स्पोर का डिस्पर्सल होता है, एंड व्हेन दिस स्पोर जर्मिनेट्स, it develops into a protonema. So the right answer would be that protonema stage develops from directly from a spore. Please go through Bryophytes, जो मॉसेस वाला सेक्शन है उसमें गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। उसमें सीधे के सीधे यही जवाब दिया हुआ है कि प्रोटोनीमा कहां से डेवलप होता है, इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, ठीक है। और ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन भी है, तो प्लीज उसको अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो, जिन्होंने भी गलत जवाब दिया है, ठीक है। डायरेक्टली डेवलप्स फ्रॉम अ स्पोर, एवरीवन फाइंड दैट इन एनसीईआरटी, ओके। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? और लैटरल बड से क्या डेवलप होता है, जब ये स्पोर आया उसके लैटरल बड से फिर जो लीफी स्टेज है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और इरेक्ट फेज is represented by a haploid gametophyte, and it alternates with a short-lived multicellular sporophyte which is totally or partially dependent on the gametophyte for its anchorage and nutrition, ठीक है। ये वाली जो प्योरली ये जो लाइन है, ये पैराग्राफ है, ये लास्ट पेज जो प्लांट किंगडम का ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में लास्ट पेज है उस पे दिया हुआ है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लें कि ये बेसिकली बताना क्या चाह रहे हैं और कैसे हम राइट आंसर पे पहुंचे। सो टेल मी एवरीवन, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? थर्ड ऑप्शन, ओके, ब्रायोफाइट्स इज द राइट आंसर, वेरी गुड। लेकिन ये हम लोग समझ लेते हैं कि ये हो कैसे रहा है। आप देखो कि यहां पे दिया हुआ है टोटली और पार्शली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। अब जब ये बोल रहे हैं कि टोटली और पार्शली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, दिस मीन्स that gametophyte is the major phase, this means that gametophyte is the major phase, or we can say that it is the dominant phase, ठीक है। और अगर डोमिनेंट फेज है, और गैमेटोफाइट किस में डोमिनेंट फेज होता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रायोफाइट्स में। लेकिन एक और पॉइंट आपको नोट करके रखना है, वन मोर पॉइंट दैट यू हैव टू कंसिडर इज दैट yes, independent photosynthetic थैलॉइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो इसमें ये हो गया, बट वन मोर पॉइंट दैट आई वांटेड टू टेल यू इज दैट शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, ठीक है, कि स्पोरोफाइट क्या है, वो शॉर्ट लिव्ड है। और एक और चीज आपको देखना है कि जो मेजर फेज है, ठीक है, इनफैक्ट जो माइनर फेज है वो डिपेंडेंट है, लेकिन टेरिडोफाइट्स में माइनर फेज इज नॉट डिपेंडेंट, इवन दो दैट इज हैप्लोड, इट फॉलोज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ओके। Okay, haplodiploidic life cycle is found in, tell me this answer everyone. Tell me.
Ectocarpus polysyphonia and kelps. Last line of this chapter. ठीक है, which follow haplodiplontic life cycle, even though these are what? Even though these are alga. Alga में क्या होता है? Haplontic. But these are exceptions which follow haplodiplontic. Which follow what? Haplodiplontic. Okay? Now, choose the correct option for the blanks. In the laminaria, plant body is usually attached to the substratum by a dash called dash, and a leaf-like photosynthetic organ called dash. What would be the answer? Okay, 2. Hold fast. Okay, the first one is hold fast. Second is stipe. And third is frond. इसका आप अपनी NCERT में देखिएगा फिगर. Something like this. This is what? This is hold fast, जो कि attached है किससे? Substratum. This is the substratum. Substratum से attached है. ठीक है, hold fast, substratum. This is type and this is frond. ठीक है, तो hold fast, substratum and frond. ठीक है, फिर उसके बाद now let us come to next. Zygotic meiosis is characteristic of. Tell me everyone. Zygotic meiosis. I hope Samragi should be able to answer. When we were discussing this, we had a long discussion. Okay, Soumya has answered. Soumya has answered. Samragi has also answered. Good. And your answer is right. That is thallophyta. Okay, what is the answer? That is thallophyta. और thallophyta का क्या है? इसमें आप देखो, thallophyta basically algae. ठीक है, algae है, and algae में कौन सा लाइफ साइकिल फॉलो होता है? We know that is haplontic. Haplontic लाइफ साइकिल में सिर्फ और सिर्फ, why is it called haplontic? Because only gametophyte is formed. Only gametophyte is formed if we consider that sporophyte represents a multicellular phase. ठीक है, लेकिन अगर यूनिसेलुलर फेज को भी स्पोरोफाइट अगर समझ लें तो हम कह सकते हैं दैट स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल्ड zygote. ठीक है, ओनली गैमेटोफाइट इज फॉर्म, स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? अ सिंगल सेल्ड zygote. ठीक है, अब इसमें आप देखिए, हम लोग लाइफ साइकिल इसका एक बार देखते हैं. लेट अस स्टार्ट विथ गैमेटोफाइट. सपोज दिस इज द गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट
यहाँ पे मान लेते हैं मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड कंडीशन, इसकी प्लॉइडी क्या होगी, एन। एन अगर प्लॉइडी है तो ये मियोसिस तो कर नहीं सकता है, लेकिन इसके कुछ सेल्स जो हैं कैन फॉर्म, ठीक है, कैन फॉर्म व्हाट, मेल गैमीट, female gamete, and it would fuse to form 2n, which would be zygote, ठीक है, and this is what, this is fertilization or syngamy, this is fertilization or syngamy, okay। फिर 2n ये जो zygote है, ये जाइगोट क्या करेगा, इट वुड अंडरगो meiosis to form, these are n, means the ploidy is n, and these are spores, and spores would undergo mitosis to form gametophyte। तो यहां पे आप देखो जाइगोट जो है इमीडिएटली, ठीक है, जाइगोट जो है वो इमीडिएटली मियोसिस कर दे रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वी से दैट इट इज zygotic meiosis, okay। what do we say, that it is zygotic meiosis। now let us move on। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कॉमन टू ऑल एल्गी, तो जहां पे बी है डी है उसको हटा दो, ये के सीधे क्या कर देना है, टेल मी एवरीवन व्हाट इज द आंसर, टेल मी व्हाट इज द आंसर। The answer would be A, chlorophyll, three, chlorophyll A and carotene B। तो आपको पता ही है कि जो ये क्लोरोफाइसी में है, सी फियोफाइसी, डी रोडोफाइसी, क्लोरोफिल ए सब में है, और कैरोटीन जो है वो सब में होगा, ठीक है। सो राइट आंसर वुड बी 3। Now, sexual reproduction in Thallophyta takes place by, sexual reproduction in Thallophyta takes place by, tell me everyone। आपके ऑप्शन है आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, ऊगैमी, एनी ऑफ द अबव। फोर्थ इज द राइट आंसर, एनी ऑफ द अबव। आइसोगैमी से भी हो सकता है, अनाइसोगैमी से भी हो सकता है, ऊगैमी से भी हो सकता है। Now next question, in bryophytes diploid number of chromosomes occur in, tell me। tell me diploid number of chromosomes occur in, किसमें होगा डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, टेल मी एवरीवन। देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन साउंड, इज द डिस्टर्बेंस क्लियर नाउ? इज द डिस्टर्बेंस क्लियर? टेल मी सौम्या। Is the disturbance clear? Can you hear me clearly now? Okay. Sir, सौम्या ने ठीक है डिस्टर्बेंस बोल के आंसर बता दिया, श्रुति ने भी आंसर बता दिया।
Okay, sir, the right answer is 3 spore mother cells. Gamete आपको पता ही है, these are haploid. स्पोर अभी हमने डिस्कस किया, हैप्लॉइड. न्यूक्लियाई ऑफ गैमीट्स जो होंगे वो तो हैप्लॉइड होंगे ही, सो दैट इज एन. और जो स्पोर मदर सेल्स हैं अभी हमने डिस्कस किया कि स्पोर मदर सेल्स अंडरगो मेयोसिस टू फॉर्म स्पोर्स, सो दिस वुड बी 2n और डिप्लॉयड. ओके, आई होप ये पॉइंट जो है आप लोगों के लिए क्लियर होगा. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. The antherozoids of bryophytes possess the antherozoids of bryophytes possess. Please tell me the answer. The question is, the antherozoids of bryophytes possess. If okay, 2 flagella is the right answer. Why 2 flagella? When you go through your NCERT, it says that bryophytes possess biflagellate antherozoids. Okay, what do they possess? Biflagellate antherozoids. Now, next, which of the following is an example of moss? ठीक है, मॉस आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है फ्यूनेरिया, सो द राइट आंसर इज फ्यूनेरिया. फ्यूनेरिया इज अ मॉस. ओके, बहुत ही सिंपल सवाल. फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, व्हाट इज फाइकोलॉजी? एल्गी. थोड़ा सा अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है लाइकेंस. ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या दिया हुआ है? लाइकेंस. लाइकेंस में आप देखिएगा, लाइकेंस में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एल्गी एंड फंगी. एल्गी एंड फंगी. एल्गी का क्या है? एल्गी का होता है द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी. और लाइकेंस में जो है, वी से द एल्गल कंपोनेंट इज फाइकोबायोन्ट एंड द फंगल कंपोनेंट इज माइकोबायोन्ट. सो द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, इसीलिए उसको हम कह रहे हैं फाइकोबायोन्ट. सो उसी हिसाब से आप लोग फंगी का बता सकते हैं कि द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी. ठीक है, द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी. नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Natural system of classification considers. What does it consider? What is the right answer? Natural system of classification considers external and internal features, ultrastructure and anatomy, embryology and phytochemistry. The right answer is that it considers all of this. Okay, so all of the above is the right answer. Okay. Good, everyone. Now let us move on to next question. Classification on cytological information like chromosome number, structure and behavior is called what? Tell me. The right answer would be the cytotaxonomy. Cytotaxonomy में chromosome structure,
number and behavior, so that is cytotaxonomy. Numerical taxonomy क्या होता है? What is numerical taxonomy? Numerical taxonomy में computer based है. Computer based में जहाँ पे हम हर character को numbers and symbol signs प्रोवाइड कर देते हैं, और बेसिकली मतलब यह है कि ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल वेटेज, सबको बराबर का वेट देते हैं, और फिर उसके बाद डेटा प्रोसेस करके हम लोग उसमें टैक्सोनॉमी करते हैं. ठीक है, तो दैट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. साइटोटैक्सोनॉमी हमने डिस्कस किया, कीमोटैक्सोनॉमी हमने डिस्कस कर लिया. एक और आप देख लीजिए, वन टैक्सोनॉमी जो रह गया है, टैक्सोनॉमी के ऊपर के हमने सारे सवाल करके डिस्कस किए. एक जो टैक्सोनॉमी रह गई है दैट इज फाइलोजेनेटिक. फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. ठीक है, इसका एक सिंपल सा assumption ये है which is true also in some respects. That simple assumption is that organisms belonging to the same taxa, organisms belonging to the same taxa have common ancestor. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? दैट ईच इज एसोसिएटेड, ईच ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड टू वन अनदर थ्रू वेरिंग डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप. ठीक है, जैसे कि हम लोग एनिमल किंगडम से ज्यादा क्लोज होंगे एज कंपेयर टू प्लांट किंगडम. ठीक है, सो दैट इज फाइलोजेनेटिक classification systems. Okay, now let us move on to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा आर, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके एल्गी वाले सेक्शन से. ठीक है, जिसमें दीज आर फिलामेंटस एंड अनब्रांच. ठीक है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा जो है वो फिलामेंटस एंड अनब्रांच है. आई होप इससे आपका जो सवाल है वो क्लियर होगा. ठीक है, नाउ फिर उसके बाद इन फियोफाइसी द ज़ूस्पोर्स आर, जल्दी बताइए. Phaeophysi are what? The right answer is that are pear-shaped and bear two flagella that are laterally attached. Okay, what is it? Pear-shaped and bear two flagella that are laterally attached. Now let us move on to next question. This is a point given in your NCERT table. देखिएगा, ठीक है. In fucus, the male and female gametes are. Tell me everyone, what can be the answer? Okay. The in fucus, I'll just write down because if it's covered by live fucus, the male and female gametes are A motile, B non-motile, C motile and non-motile respectively. The male and female gametes are non-motile and motile respectively. क्यों? क्योंकि फ्यूकस में है, क्या होता है? oogamous. oogamous में क्या हो रहा है? एक नॉन मोटाइल मेल गैमीट एंड अ मोटाइल फीमेल गैमीट होते हैं. ठीक है,
Okay. The right answer would be the male and female gamete, non-motile and motile respectively. The right answer would be fourth. Now next question. Massive plant bodies are formed by. Massive plant bodies are formed by. Okay, sorry. The male gamete would be motile while the female gamete would be non-motile. Yes, this is the right answer. The right answer would be third, not fourth. Okay? Yes. मेल गैमीट मोटाइल oogamous में होता है, क्या होता है? मोटाइल मेल गैमीट एंड नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट. सॉरी, माय फॉल्ट. ओके. Now let us move on to massive plant bodies are formed by. Massive plant bodies are formed by. Kelps. The right answer is kelps. Eulothrix spirogyra nahi. The right answer is kelps. Okay. Now let us move on to next question. Pectin and polysulfate esters are present in the cell wall of. Rehan, welcome. Pectin and polysulfate esters are present in the cell wall of red algae. This is the right answer. आपकी NCERT में टेबल में दिया हुआ है. Cellulose, pectin and polysulfate esters. ठीक है? Now, let us move on to next question. Moss plants develop from. Moss plant develops from. बताइए everyone. मॉस प्लांट डेवलप्स फ्रॉम. अभी हमने ये डिस्कस किया, शुरुआत में भी डिस्कस किया कि प्रोटोनीमा होता है, स्पोर से डायरेक्टली प्रोटोनीमा डेवलप होता है, उसके बाद लीफी स्टेज आता है. द राइट आंसर इज 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ब्रायोफाइट्स द आर्कीगोनियम इज. इन ब्रायोफाइट्स व्हाट इज आर्कीगोनियम? दैट इज फ्लास्क शेप्ड. ओके, ब्रायोफाइट्स में आर्कीगोनियम क्या है? दैट इज फ्लास्क शेप. ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा. फिर उसके बाद नेक्स्ट. इन फ्यूनेरिया द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इज. व्हाट इज द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन फ्यूनेरिया? फ्यूनेरिया में आप देखिएगा कि आपकी ये राइजॉइड्स हो गए. ठीक है, फिर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए जिसपे क्या है? फुट, सीटा एंड देन यू हैव कैप्सूल. ठीक है, तो दिस स्ट्रक्चर इतना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज रिप्रेजेंटिंग गैमेटोफाइट. दैट इज रिप्रेजेंटिंग गैमेटोफाइट एंड दिस इज सीटा and this is capsule. Okay, so foot, seta and capsule जो है वो क्या है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये जो पोर्शन इतना है दैट इज स्पोरोफाइट. सो दैट इज स्पोरोफाइट. ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? फुट, सीटा, कैप्सूल. और कॉल्यूमेला क्या होता है? स्पोर. जो स्पोरोफाइट है, कैप्सूल जो है उसके अंदर का पोर्शन दैट इज कॉल्यूमेला.
ठीक है, तो कॉल्यूमेला स्पोरोफाइट के अंदर का पोर्शन है, तो ये भी डिप्लॉयड होगा। ठीक है, तो कैप्सूल, सीटा एंड कॉल्यूमेला वुड बी डिप्लॉयड। व्हाट वुड बी हैप्लॉयड? प्रोटोनीमा, सो आंसर वुड बी 4। ओके, प्रोटोनीमा। कॉल्यूमेला आप लोग को याद है हमने और किसके स्ट्रक्चर में किया था कॉल्यूमेला? बताइए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब किया था तो किसी के स्ट्रक्चर में किया था कॉल्यूमेला? राइजोपस के स्ट्रक्चर में, स्पोरेंजियम में हमने किया था कॉल्यूमेला। यस, फंगी में राइजोपस के स्ट्रक्चर में किया था। नाउ the sporophyte or bryophyte is totally or partially dependent on the gametophyte for its what? For its anchorage and nutrition. So right answer is D, both 1 and 2. This is a line given from your NCERT. ठीक है, तो वहीं से ये सवाल बना लिया है। गुड सौम्या, यू रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Bryophytes are called amphibians of plant kingdom because Bryophytes are called amphibians of plant kingdom. Why are they called amphibians of plant kingdom? The right answer is 1, that bryophytes can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. That is why amphibians of plant kingdom. Okay, this is the right answer. Now next question. In bryophytes, what is absent? What is absent in bryophytes? This is the question right in front of you. Embryo formation, fertilization, motile gametes, true roots and vascular tissues. What is absent? Fourth is the right answer, true roots and vascular tissues, because true roots and vascular tissues would both evolve in pteridophytes. Okay, both evolved in pteridophytes. This is the right answer. Now next question. In a fertilized embryo sac, the haploid, diploid and triploid structures are. Now this is a concept from both class 12th and class 11th. In a fertilized embryo sac, the haploid, diploid and triploid structures are. What are these? इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि थोड़ा पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, और उसके बाद कैसे ये स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है सर, इसमें हम लोग देखते हैं कि देयर इज पॉलन मदर सेल। ठीक है, पॉलन मदर सेल, pollen mother cell undergoes meiosis। ठीक है, pollen mother cell क्या है, या spore mother cell हम लोग कह देते हैं, instead of calling it so that you people are not confused, spore mother cell in case of male। और अगर मेल में है तो हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल वुड अंडरगो मेयोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, एक माइक्रोस्पोर में कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। सॉरी, एक मेयोसिस के बाद कितने बन रहे हैं, आफ्टर 1 मेयोसिस 4 microspores are formed and all 4 microspores, ये चारों के चार जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो pollen grain बनाएंगे। pollen grain में क्या होता है, pollen grain में जो होता है कि there is a larger vegetative cell।
ठीक है, ये क्या हो गया, दिस इज अ लार्जर वेजिटेटिव सेल और एक होता है स्मॉलर जनरेटिव सेल। एक क्या है, स्मॉलर जनरेटिव सेल। तो आप ये देखिएगा, देयर इज अ लार्जर वेजिटेटिव सेल एंड अ स्मॉलर जनरेटिव सेल। और इसके बाद फिर क्या होता है, फिर इसके बाद होता है that the smaller generative cell undergoes another division to form a larger vegetative cell and two male gametes। ठीक है, ये larger vegetative cell हो गया और ये दोनों क्या हो गए, these are two male gametes। ठीक है, तो बेसिकली पॉलन, एक पॉलन ग्रेन में कितने मेल गैमीट्स होते हैं, दो मेल गैमीट होते हैं। ओके, वन पॉलन ग्रेन हैज टू मेल गैमीट्स। नाउ let us move on to story on the female side, female flower side. So here you have megaspore, mother cell। ठीक है, ये क्या है, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल ने क्या किया, मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मेयोसिस टू फॉर्म मेगास्पोर्स। ठीक है, मेगास्पोर्स क्या है, चार बने उसमें, लेकिन तीन डिजेनरेट हो जाते हैं। और एक जो सेल है, एक सेल वन मेगास्पोर में तीन माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। तीन माइटोटिक डिविजन्स हो गए, तो पहले डिवीजन में दो न्यूक्लियाई, और ये देखो सेल नहीं डिवाइड होता है, इट्स कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। सेल नहीं डिवाइड हो रहा है, दो न्यूक्लियाई। दूसरे डिवीजन में चार, तीसरे डिवीजन में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ठीक है, ऐसे 8 बन गए। और उसके बाद ये अपने आप को सेल वॉल फॉर्मेशन करता है। तो सेल वॉल फॉर्मेशन में ये 3 बन गए एंटीपोडल्स। ठीक है, ये क्या है, ये 3 हो गए एंटीपोडल्स। बीच में ये दोनों क्या हो गए, दीज आर पोलर न्यूक्लियाई। और यहां पे ये दो हो गए सिनर्जिड्स। ये दो क्या हो गए, सिनर्जिड्स। और ये क्या हो गया, एग। ठीक है, तो आप ये देखो, ये सारे के सारे मेयोसिस के बाद बने हैं, तो मेगास्पोर्स हैप्लॉइड होंगे। और इसके बाद क्या हुआ है, माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस 1, माइटोसिस 2 एंड माइटोसिस 3। 3 माइटोसिस हुए, तो प्लॉइडी तो चेंज नहीं होगी। तो यहां पे देखो क्या बना, 7 सेल्ड, 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियाई। सो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन हो गया। ठीक है, अब आप देखो कि इसमें पूछ रहे हैं कि हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। जब मेल गैमीट आता है अपने 2 गैमीट्स के साथ, ठीक है, जब मेल गैमीट आता है किसके साथ, अपने 2 गैमीट्स के साथ आता है, तो पहला गैमीट इसके साथ फ्यूज हो रहा है, किसके साथ, एग के साथ। ठीक है, पहले या दूसरा नहीं कहते हैं, लेट अस से दैट वन गैमीट फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म जाइगोट। मेल गैमीट भी हैप्लॉइड है, एग भी हैप्लॉइड है, तो जाइगोट क्या हो गया, एन और एन मिलके 2n डिप्लॉइड हो गया। जो दूसरा मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है,
तो उससे क्या बनता है, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, बेसिकली एंडोस्पर्म ही बनेगा। सो एंडोस्पर्म क्या हो जाता है, एंडोस्पर्म 3 न्यूक्लियाई के फ्यूजन से, सो दैट इज 3n, सो ट्रिप्लॉइड हो गया, ठीक है, 3n है तो ट्रिप्लॉइड हो गया। तो इसमें आप देखो इधर सिनर्जिड जो है दैट इज हैप्लॉइड, जाइगोट जो है वो 2n है, एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वो ट्रिप्लॉइड होगा। सो इट वुड बी, दिस इज द राइट आंसर, सिनर्जिड, जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म nucleus. Okay, I hope this would be clear to all of you. Tell me. Tell me, everyone. Okay, now let us move on to next question. Okay, while planning for an artificial hybridization program involving dioecious plants, which of the following steps would not be relevant? और इसके लिए थोड़ा सा जो क्लास 12th में अभी आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्योंकि आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी पढ़ा हुआ है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी पढ़ा हुआ है, तो इसमें आपको पता होगा कि डायोशियस प्लांट क्या होता है। डायोशियस प्लांट होता है जिसमें कि मेल एंड फीमेल, ठीक है, occur on different plants, ठीक है, occur on different plants, so that is dioecious। और इसमें आप देखो कि जब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो मेल फ्लावर को हटा देते हैं, क्योंकि मेल फ्लावर को इसलिए हटा दे, मेल नॉट फ्लावर, क्योंकि मेल प्लांट को मेल प्लांट पार्ट को हटा देते हैं, दैट इज स्टेमन, ठीक है। तो क्या करते हैं इन बाइसेक्सुअल प्लांट्स, or rather in bisexual flowers, male organ is removed, ठीक है। और ये जो मेल ऑर्गन का रिमूवल होता है, द रिमूवल ऑफ मेल ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड एज emasculation, ठीक है, रिमूवल ऑफ मेल ऑर्गन इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। तो आप देखिए कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में तो इमैस्कुलेशन की यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जिसमें या तो सिर्फ मेल पार्ट है, या तो स्टैमिनेट है, या पिस्टिलेट है, उसमें हमें करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टैमिनेट वाले को यूज नहीं करेंगे और पिस्टिलेट वाले में स्टेमन है नहीं, तो इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो व्हाइल प्लानिंग फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डायोशियस प्लांट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड नॉट बी रेलेवेंट? Emasculation would not be relevant. Okay, so right answer would be C. Is that clear, everyone? I did not receive an answer for this question. Okay, emasculation से हमने, suppose this is a bisexual flower, okay, this is a bisexual flower, इसमें अब ये इसके स्टेमन्स हो गए, ठीक है। अगर हम लोगों ने स्टेमन को नहीं हटाया तो हो सकता है कि इसका पॉलन इसी के स्टिग्मा पे लैंड कर जाए, ठीक है, हो सकता है इसका पॉलन इसी के स्टिग्मा पे लैंड कर जाए। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि इसको हटा दिया, ठीक है, इसको हमने हटा दिया, और अब क्या बचा? स्टिग्मा।
तो किसी और का पॉलन, इससे तो हमने ये बचा दिया कि उसी फ्लावर का पॉलन ना गिर जाए, लेकिन किसी और का पॉलन भी तो गिर सकता है, तो उससे बचाने के लिए हम लोग जो है वो बैगिंग करते हैं। इज दैट क्लियर सौम्या? तो बैगिंग तो करना ही पड़ेगा। Tell me, is that clear? Okay. Now let us move on to next question. In the embryos of a typical dicot and a grass, true homologous structures are. Now what are these true homologous structures? Let us see. Tell me, first of all, tell me your answers everyone, and then we'll move on. Tell me your answer. The question is, in the embryos of a typical dicot and a grass, true homologous structures are. होमोलोगस स्ट्रक्चर का मतलब आपको पता है, सेम ओरिजिन। तो मोनोकॉट में तो आप देखिए कि स्क्यूटिलम किस में होता है, मोनोकॉट में। मोनोकॉट के कॉटिलेडन को स्क्यूटिलम कह रहे हैं, और कॉटिलेडन्स जो है वो डाइकॉट में तो है ही, ठीक है। तो कॉटिलेडन्स एंड स्क्यूटिलम यही होगा। सो दीज आर होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, ठीक है सर। आई होप दिस शुड बी क्लियर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ फ्लावर, इफ द मेगास्पोर मदर सेल forms megaspores, undergoes meiosis, and if 3 of the megaspores develop into an embryo sac, its nucleus would be. Basically, the language has been confused in this question. In a flower, if the megaspore mother cell undergoes meiosis, ठीक है, forms megaspores को अगर आप कट कर दें, undergoes meiosis, and if 3 of the megaspores develop into an embryo sac, its nuclei would be. जल्दी बताइए। इसमें देखिए मेयोसिस हो गया है, मेयोसिस के बाद जो 3 मेगास्पोर बने हैं, ठीक है, यानी कि ट्राइस्पोरिक होगा एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन, उसके बाद तो वो मेयोसिस कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हैप्लॉइड। गुड रेहान, द आंसर इज हैप्लॉइड। फिर उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एल्यूरॉन ऑफ aileron cells of a plant with 42 chromosomes in its root tip cells? बताइएगा। Okay, Rehan Badar says 2 and Soumya says 1. फिर आप देखिएगा, the number of chromosome of aileron cells of a plant with 42 chromosomes in its root tip cell. root tip diploid होता है, यानी 2n equals to 42, यानी n equals to 21। और जो एल्यूरॉन सेल्स होते हैं, एल्यूरॉन सेल्स क्या होते हैं, एल्यूरॉन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड 3n, सो राइट आंसर वुड बी 63। गुड रेहान, दिस इज द राइट आंसर 63। इज इट क्लियर सौम्या?
Aileron layer is the outermost layer of endosperm, and endosperm is triploid. So right answer would be 63. Okay. Okay. Now let us move on to next question. Double fertilization involves. हम लोगों ने डिस्कस किया डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल से फ्यूज हुआ और दूसरा जो है वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ. सो फर्टिलाइजेशन ऑफ टू एग्स fertilization of the egg and the central cell brought by the two sperms brought by the same pollen tube. Okay, so that is अब central cell वाला ही जो न्यूक्लियाई होता है that is polar nuclei. ठीक है, वन जो सबसे बड़ा वाला सेल था जो हमने अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, एंटीपोडल्स, सिनर्जिड्स, एग, पोलर न्यूक्लियाई. तो ये जो लार्ज सेल है, ये जो सबसे बड़ा वाला सेल है दैट इज सेंट्रल सेल, और इसी सेल के ये दो पोलर न्यूक्लियाई हैं. सो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, ये एग एंड दी सेंट्रल सेल यानी कि इसका न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस से फ्यूज होना बाय टू स्पर्म्स ब्रॉट बाय सेम pollen tube, that is double fertilization. Okay, so this is the right answer, fourth. Now let us move forward. The number of nuclei taking part in double fertilization are, tell me क्या आंसर होगा इसका. The number of nuclei taking part in double fertilization are, the right answer would be, सबसे पहला egg cell involved है, then one male gamete, इन दोनों का फ्यूजन हो गया तो दो हो गए, then polar nuclei, ये कितने हो गए, यानी कि 1, 2 and then another male gamete, ये भी क्या हो गया 1. So right answer is 5. Okay, so this is the right answer, 5. फिर उसके बाद, yes, the right answer is 5. Now let us move on to next. Pteridophytes. Pteridophytes are called vascular cryptogams because they are without seeds and flowers but having इसमें आप देखिए वैस्कुलर टिश्यूज का जो एवोल्यूशन है वो हो गया था, तो वैस्कुलर इसलिए कहते हैं यानी कि जाइलम फ्लोएम. सो राइट आंसर वुड बी थर्ड, बोथ ए एंड बी, दिस इज द राइट आंसर. नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. The term prothallus is used for the, जल्दी से कीजिए, पूरा चैप्टर हमने अभी डिस्कस किया है. Everyone please attempt this question. Tell me. The term prothallus is used for the, सौम्या ने आंसर किया थर्ड. The question is the term prothallus is used for the, and the right answer is, it is the reduced gametophyte of pteridophytes. ठीक है, prothallus, haploid, photosynthetic, free living, independent. Okay, so this is the right answer. The right answer is reduced gametophyte of pteridophytes. Okay, साम्राज्ञी रिड्यूस स्पोरोफाइट नहीं है क्योंकि स्पोरोफाइट इज द मेजर फेज इन टेरिडोफाइट्स. द आंसर वुड बी रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स. नाउ लेट अस मूव ऑन
To the next question, in fern, prothallus develops from. Prothallus कहाँ से develop करेगा? जल्दी बताइए. Prothallus क्या है? What is prothallus? Prothallus is a haploid structure. So can a haploid structure develop from fertilization? No, that would be diploid. Zygote is diploid. Secondary protonema. Secondary protonema वो तो mosses का है, तो वो किससे develop करेगा? Spore, क्योंकि spore is haploid. The right answer is N. Okay, now Samragi, please check, go through NCERT. टेडोफाइट्स वाले सेक्शन की लास्ट लाइन देखिएगा और नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कीजिएगा. अर्जुन की तरह मत रहिएगा कि एक ही पॉइंट देखा. ओके ओके, नाउ द स्ट्रक्चर दैट आर हैप्लॉइड इन पाइनस. जल्दी बताइए, द स्ट्रक्चर्स दैट आर हैप्लॉइड इन पाइनस. पाइनस में आप देखिए उनका एंडोस्पर्म भी हैप्लॉइड होता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन जाता है. तो मेगास्पोर हैप्लॉइड क्योंकि आफ्टर मियोसिस बना. पॉलन ग्रेन भी हैप्लॉइड, एंडोस्पर्म भी हैप्लॉइड. सो राइट आंसर इज 2, मेगास्पोर, pollen grain and endosperm. Okay, now let us move on to this final question. In cycas, male and female cones are present on same plant. The male cones and female megaspore. राइट आंसर हियर इज साइकस. क्या होता है? साइकस इज डायोशियस, यानी कि मेल एंड जो फीमेल प्लांट्स कोन्स हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन that males and megasporophylls are present on different plants. Male cones and female cones are present on different. Okay. Now, so आज के लिए student discussion another new chapter. So till then, enjoy learning, have fun with Edulux Rank Up classes. I'll see you next time. Thank you so much.